Welcome to the online learning platform of Sri Swaminarayan Institute of Technology, Bad Gandhinagar. Myself, Professor Gaurang Patel, your instructor for the course Analog and Digital Communication. Dear students, since last two lectures, we are discussing about angle modulation, and more specifically in angle modulation we have discussed about frequency modulation. So basically frequency modulation is the process in which the frequency of carrier signal is changed according to instantaneous amplitude variation of modulating signal. We have also derived the mathematical expression for the frequency modulation. So the mathematical expression for the frequency modulation is given as Vs of t is equal to Vc cos omega ct plus delta fc divided by fm sin omega t, where this factor delta fc divided by fm is basically known as a modulation index beta. So basically this factor is nothing but modulation index beta, and if we write this expression in terms of beta, then our expression will be Vs of t, very important, Vs of t is equal to Vc, where Vc is the peak amplitude of the carrier signal, cos omega ct, where omega c is nothing but frequency of the carrier signal, plus instead of this factor delta fc divided by fm, let me write beta, which is the modulation index, okay, sin very important omega mt. So this is the standard expression for the FM wave, and we have to remember this expression. Okay, from this expression there will be a direct numericals in the exam, okay, where beta is the modulation index and which is nothing but delta f divided by fm. What is delta f? Delta f is the frequency deviation, maximum frequency deviation. This is the frequency deviation. And what is frequency deviation? That we discussed in the last class. Okay, this is the frequency deviation. Okay, fm is the maximum frequency of the modulating signal, frequency of modulating signal bolo, message signal bolo, okay, baseband signal bolo, both everything is same. Modulating signal, very important. Now in short we can say that the modulation index beta depends on frequency deviation as well as maximum frequency of the modulating signal, and which is nothing but our modulation index beta. Now in today's class we will discuss about the frequency domain representation of FM, or we can say that frequency spectrum of FM. तो हमने लास्ट दो लेक्चर में फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन के बारे में जितना भी डिस्कशन किया, इट वाज टाइम डोमेन एनालिसिस ऑफ द एफएम, वो टाइम डोमेन रिप्रेजेंटेशन था. अब आज हम उसके फ्रीक्वेंसी डोमेन रिप्रेजेंटेशन के बारे में डिस्कशन करेंगे. इन शॉर्ट वी विल डिस्कस अबाउट द फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम ऑफ एफएम. तो बच्चों अगर आपको याद है तो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में हमने एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव का फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम डिस्कस किया था. और फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम बेसिकली क्या होता है कि जो हमारा वेव है, मतलब मॉड्यूलेटेड वेव है, उसमें जितने भी फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट है वो सब फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट को अगर हम प्लॉट करें विथ रिस्पेक्ट टू amplitude of that frequency component with respect to frequency, that gives us the frequency spectrum. So basically frequency spectrum is the graph of frequency versus amplitude.
ऑफ डिफरेंट फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट, फ्रीक्वेंसी वर्सेस एम्पलीट्यूड। तो हमें बच्चों यही करना है कि जो फ्रीक्वेंसी मतलब जो हमें एफएम वेव का जो हमें स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन मिला है उसको हम फ्रीक्वेंसी डोमेन में रिप्रेजेंट करेंगे, और फ्रीक्वेंसी डोमेन से हमें पता चलेगा कि उसमें कौन कौन से फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट है और वो फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट का एम्पलीट्यूड कितना है वो हमें मालूम पड़ेगा फ्रॉम द फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम। तो अगर हम स्टार्ट करें तो हमें पता है कि द मॉड्यूलेशन ऑफ एनी कैरियर इन एनी वेज प्रोड्यूस साइड बैंड्स। तो वो हमने एएम में भी देखा था एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में कि एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव कंसिस्ट ऑफ साइड बैंड्स at different frequencies. Okay, so for amplitude modulated wave, the way in which these sidebands are created and their bandwidth and amplitude are quite straightforward. मतलब एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में हमने देखा था उसका फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम, तो उसमें दो साइड बैंड थे, अपर साइड बैंड एंड लोअर साइड बैंड, दोनों के एम्पलीट्यूड सेम थे और उसकी बैंडविड्थ कैलकुलेशन भी क्वाइट स्ट्रेट फॉरवर्ड थी, उसमें कुछ इतना कॉम्प्लिकेशन नहीं था। बट द सिचुएशन फॉर फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड सिग्नल इज रादर डिफरेंट। मतलब जो हमारा एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव का जो फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम था उसके कंपेयर में एफएम फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन का फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम थोड़ा अलग है, वो जो हमें डिस्कस करना है। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का तो फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम सबको पता है। लेट मी रिपीट वंस अगेन कि एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम कैसा था, तो मतलब एक बार आपको दिमाग में आ जाएगा। तो बेसिकली द फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम ऑफ द एएम कंसिस्ट ऑफ वन कैरियर at the frequency fc, okay, whose amplitude is ec, okay, and two sideband, one at the frequency fc plus fm and another at the frequency fc minus fm, which is nothing but lower sideband. This is the lower sideband and this one is the upper sideband, and amplitude of these sidebands are m by 2 EC max, m by 2 EC max, and amplitude of this lower sideband is also m by 2 EC max. Okay, so clearly from this spectrum we can say that the AM consists of three frequency component, one at the frequency fc and one is at the frequency fc plus fm, another as the frequency fc minus fm, and their amplitudes are also clearly visible. Okay, and bandwidth calculation is also quietly straightforward. But in case of FM, this is not quite straightforward, it is rather different. So let's discuss about the frequency spectrum of FM. So basically जो frequency modulated wave है उसके frequency spectrum में जो side bands है, जैसे FM में AM में side bands है, वैसे frequency modulated wave में भी side bands है. So the FM sidebands are depend on basically modulation index beta. So very important, in FM the sidebands amplitude, basically sidebands in FM are dependent on modulation index beta, and as we know beta is nothing but delta f divided by fm, delta f divided by fm. So we can say that the fm sidebands are depend on frequency deviation or level of deviation and the frequency of modulating signal, correct, because sidebands are basically depend on beta and beta depends on delta f and fm. So we can say that the fm sidebands are dependent on both the level of deviation and the frequency of modulation, and in fact the total spectrum of the frequency modulated wave consists of one carrier plus infinite number of side bands which are spreading out on the either side of the carrier at the integral multiples of the modulating frequency. Very important, ये दिमाग में फिट कर लो. AM में कितने side bands थे? Only two side bands are there. In AM there are only two side bands plus carrier. Where in case of FM थियोरिटिकली अगर हम बात करें कितने साइड बैंड्स होंगे बेटा? इनफाइनाइट नंबर ऑफ साइड बैंड्स. ऐसे जो साइड बैंड्स है ना वो इनफाइनाइट नंबर ऑफ साइड बैंड्स होंगे इन एफएम, प्लस इट ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ कैरियर. सो अगर हम एफएम के फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम की बात करें देन बेसिकली इट कंसिस्ट ऑफ वन कैरियर एट द फ्रीक्वेंसी एफसी एंड इनफाइनाइट नंबर ऑफ साइड बैंड्स स्प्रेडिंग out on the either side of the carrier.
वैसे इनफाइनाइट नंबर ऑफ साइड बैंड्स ऐसे आपको मिलेंगे on the either side of the carrier frequency. Very important likewise. So it consists of infinite number of side bands, and this is theoretical, very important. Practically it does not have infinite number of side bands, but theoretically हम बात करें, if we look at the theoretical aspect, then theoretically FM consists of infinite number of side bands. Okay, done. तो वो देख लेते हैं वो कौन सी फ्रीक्वेंसी पे होते हैं और उसका एम्पलीट्यूड किस पे डिपेंड करता है, वो थोड़ा देख लेते हैं. तो बेटा हमें पता है कि जो हमारा फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड वेव है उसका स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन कौन सा है, Vs ऑफ टी इज इक्वल टू Vc cos ओमेगा सी टी प्लस बीटा साइन ओमेगा एम टी. अगर मैं इसको रिप्रेजेंट करूं इन टर्म्स ऑफ बेसल फंक्शंस, very important Basel function, if I represent this or if I expand this standard expression of FM in terms of Basel series or Basel function, then it can be written as Vs of t is equal to Vc sigma n is equal to minus infinity to infinity Jn beta cos omega c plus n omega mt, where Jn beta are nothing but Basel coefficient. These are nothing but Basel's coefficient. J and beta are the Basel's functions of first kind और Basel's coefficient. तो आप देख सकते हो कि अगर मैं ये सीरीज बन गई, एक पूरी सीरीज बन गई और इसको मैं अगर एक्सपांड करूं तो इट कैन बी रिटन एज Vs ऑफ t इज इक्वल टू, फर्स्ट हम n की जगह पे 0 लिखें तो क्या हो जाएगा Vc J0 बीटा cos ओमेगा सी टी, प्लस n की जगह पे 1 लिखे तो प्लस Vc J1 बीटा cos ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम इंटू टी, प्लस एन की जगह पे -1 लिखे मतलब आइदर साइड, तो क्या हो जाएगा Vc J-1 बीटा cos ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम इंटू टी. एन की जगह पे प्लस और -2 लिखे तो Vc J2 बीटा cos ओमेगा सी प्लस 2 ओमेगा एम इंटू टी, प्लस -2 लिखे तो एन की जगह पे Vc J-2 बीटा cos ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम ट्वाइस ओमेगा एम इंटू टी प्लस एंड सो ऑन. मतलब ये पूरी सीरीज बन गई और इसको मैं एक्सपांड करूं तो मुझे कुछ ऐसा स्पेक्ट्रम मिलेगा एफएम का. तो आप देख सकते हो कि पहला कंपोनेंट कौन सी फ्रीक्वेंसी पे है, एट द कैरियर फ्रीक्वेंसी एफसी. सेकंड कंपोनेंट है वो कौन सी फ्रीक्वेंसी पे है, ओमेगा सी प्लस ओमेगा और एफसी प्लस एफएमटी पे, और दूसरा है एफसी माइनस एफएमटी पे ऑन द आइदर साइड ऑफ द कैरियर. मतलब मैं यहाँ पे अगर प्लॉट करूं इसको तो एक कंपोनेंट कौन सी फ्रीक्वेंसी पे, एफसी पे है, जिसका एम्पलीट्यूड कितना है बेटा, Vc J0 बीटा, Vc J0 बीटा, करेक्ट. ओके, व्हाट इज J0 बीटा, विच आर नथिंग बट बेसल फंक्शन ऑफ फर्स्ट काइंड. अनदर कंपोनेंट एट द फ्रीक्वेंसी Fc plus Fm. Here there is a frequency component Fc plus Fm. Okay, another frequency component Fc minus Fm. Fc minus Fm, then another component at the frequency Fc plus twice Fm, another component at the frequency Fc plus thrice Fm, and so on. Similarly over here on the left hand side Fc minus twice Fm, and so on. It will be up to infinite theoretically. Okay, up to Fc minus 3 Fm, Fc minus 4 Fm, Fc minus 5 Fm, and so on. Similarly, Fc plus 3 Fm, Fc plus 4 Fm, and so on the right side. And the amplitude of this depends on the Basel function, that is J1 beta. Okay, that depends on Vc J1 beta, Vc J2 beta, Vc J3 beta, and so on. It means that the amplitude, the Fm, the frequency modulated wave consists of carrier signal at the frequency Fc, and it also contains infinite number of side bands on the either side of this carrier. Okay, and the amplitude of these side bands depends on the that is the Basel function, which are nothing but J and beta, and Basel functions are basically depends on the modulation index. And modulation index depends on the frequency deviation and maximum frequency of the modulating signal. तो अगर मैं theoretically बात करूं, then FM consists of infinite number of side bands. Now what about the bandwidth in this case?
अगर इनफाइनाइट नंबर ऑफ साइड बैंड्स है तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ साइड बैंड्स को ट्रांसमिट करने के लिए कितनी बैंडविड्थ चाहिए? इनफाइनाइट, है ना। अगर हम एएम की बात करें तो एएम में ये साइड बैंड था, ये कैरियर था और ये साइड बैंड था, मतलब इतने ही कंपोनेंट है, 3 ही कंपोनेंट थे, और उसको ट्रांसमिट करने के लिए हमें कितनी बैंडविड्थ चाहिए थी? ट्वाइस एफएम. But in case of FM, it consists of infinite number of side bands. Then the bandwidth requirement is also infinite. In case of FM, theoretically, I am talking about theoretical consideration now. Clear हो गया? Okay. तो अब ये क्लियर है कि जो फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम में जो फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट है उनका एम्पलीट्यूड किस पे डिपेंड करता है? बेसल फंक्शंस. तो उसको देखते हैं कि ये बेसल फंक्शंस कैसे वेरी करता है, उसकी वैल्यू कैसे वेरी करती है विथ रिस्पेक्ट टू बीटा. तो आप देख सकते हो कि ये एक मतलब फिगर है, इसमें आप देख सकते हो कि कैसे साइड बेंड्स का लेवल और साइड बेंड्स का एम्पलीट्यूड इंक्रीज और डिक्रीज होता है विद द वैल्यू ऑफ बीटा, और बीटा डिपेंड्स ऑन डिविएशन एंड मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी दैट वी नो, दैट इज डेल्टा एफ बाय एफ एम. तो मतलब ये फिगर से आपको पता चलता है कि कैसे साइड बेंड्स जो हमारे अलग अलग साइड बेंड्स और कैरियर, उसका एम्पलीट्यूड कैसे बीटा पे डिपेंड करता है, और बीटा किस पे डिपेंड करता है? अल्टीमेटली फ्रीक्वेंसी डेविएशन एंड मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी. तो जैसे जैसे मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी एंड डेविएशन चेंज होगा वैसे वैसे बीटा चेंज होगा, और बीटा चेंज होगा तो हमारा जो साइड बेंड्स और जो कैरियर है उसका एम्पलीट्यूड भी इंक्रीज और डिक्रीज होगा. तो आप देख सकते हो ये कैरियर सिग्नल है, ये कैरियर का एम्पलीट्यूड है, बेसिकली ये कैरियर वेव है एट द फ्रीक्वेंसी एफसी. ये फर्स्ट साइड फ्रीक्वेंसी है एट द फ्रीक्वेंसी एफसी प्लस एफएम एंड एफसी माइनस एफएम. ये सेकंड साइड फ्रीक्वेंसी है एट द फ्रीक्वेंसी एफसी प्लस 2 एफएम एंड एफसी माइनस 2 एफएम. ये थर्ड साइड फ्रीक्वेंसी है एफसी प्लस 3 एफएम एंड सो ऑन, अलग अलग 12, 15 एंड सो ऑन. तो आप देख सकते हो जैसे जैसे मतलब जो जितने भी साइड बैंड्स है सबका एम्पलीट्यूड बीटा के साथ चेंज होता है. ये बेसिकली ये मॉड्यूलेशन इंडेक्स, दिस इज अ मॉड्यूलेशन इंडेक्स. ये एक्स एक्सिस पे मॉड्यूलेशन इंडेक्स है एंड वाई एक्सिस पे जो हमारे साइड बैंड्स है उसका रिलेटिव एम्पलीट्यूड है. करेक्ट? ओके. अगर मैं इसको टेबुलर फॉर्म में देखें, ओके, मतलब ये जो हमारे साइड बैंड्स है उनका एम्पलीट्यूड टेबल के फॉर्म में हम डिस्कस करें विथ रिस्पेक्ट टू बीटा, देन आप देख सकते हो कि ये मॉड्यूलेशन इंडेक्स की वैल्यू है यहाँ पे. ओके. एंड फॉर करस्पॉन्डिंग मॉड्यूलेशन इंडेक्स व्हाट इज द एम्पलीट्यूड ऑफ द साइड बैंड दैट इज प्रेजेंटेड ओवर हियर. तो आप देख सकते हो कि अगर मैं एक पकड़ लूँ कि चलो मान लो कि ये मॉड्यूलेशन इंडेक्स सपोज 0.25 है, मतलब बीटा की वैल्यू सपोज 0.25 है. ओके. तो जब बीटा की वैल्यू 0.25 है तो फर्स्ट जो हमारा कैरियर सिग्नल है उसका एम्पलीट्यूड 0.98 है. कैरियर का एम्पलीट्यूड कितना है? 0.98. फर्स्ट साइड फ्रीक्वेंसी है उसका एम्पलीट्यूड 0.12 है, और इसका तो है ही नहीं, मतलब 0 है, बेसिकली है ही नहीं. ओके. सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड 5 साइड बैंड्स का एम्पलीट्यूड 0 है फॉर दिस मॉड्यूलेशन इंडेक्स. अगर हम मॉड्यूलेशन इंडेक्स 0.5 है सपोज, एफएम में जो मॉड्यूलेशन इंडेक्स है वो 0.5 है सपोज बीटा, तो अगर वो 0.5 है तो जो कैरियर सिग्नल का एम्पलीट्यूड है वो 0.94 है. फर्स्ट साइड बैंड का, फर्स्ट साइड फ्रीक्वेंसी का एम्पलीट्यूड 0.24 है, सेकंड का 0.03 एंड सो ऑन, बाकी के 0 है. अगर मैं मॉड्यूलेशन इंडेक्स सपोज 2 है तो फर्स्ट साइड कैरियर का एम्पलीट्यूड 0.22 है, फर्स्ट साइड फ्रीक्वेंसी का एम्पलीट्यूड 0.58 है, सेकंड साइड फ्रीक्वेंसी का एम्पलीट्यूड 0.35 है, थर्ड साइड फ्रीक्वेंसी का एम्पलीट्यूड 0.30 है एंड फोर्थ साइड फ्रीक्वेंसीज का एम्पलीट्यूड 0.03 एंड सो ऑन. ओके. तो यहाँ पे आप इंपॉर्टेंट चीज एक चीज नोट कर सकते हो कि जब मॉड्यूलेशन इंडेक्स की वैल्यू 2.4 के आसपास है, मतलब 2.41 है, मोर स्पेसिफिकली बीटा की वैल्यू 2.41 है, तब कैरियर का एम्पलीट्यूड 0 हो जाता है. देखो कैरियर फॉल्स टू 0 एंड ऑल द पावर, मतलब वॉट एवर द पावर एफ एम एस दैट इज कंटेन विद इन ओनली साइड बैंड्स. मतलब व्हेन मॉड्यूलेशन इंडेक्स की वैल्यू 2.41 है एफएम में, तब कैरियर का एम्पलीट्यूड 0 हो जाता है. सिर्फ क्या बचता है? साइड बैंड फ्रीक्वेंसीज होती है, सिर्फ साइड बैंड फ्रीक्वेंसीज होती है, दैट यू कैन सी. एंड साइड बैंड के एम्पलीट्यूड भी यहाँ पे रिप्रेजेंटेड है कि फर्स्ट साइड फ्रीक्वेंसी का एम्पलीट्यूड 0.52 है, सेकंड साइड फ्रीक्वेंसी का एम्पलीट्यूड 0.43 है, थर्ड साइड फ्रीक्वेंसी का एम्पलीट्यूड 0.20 है, फोर्थ साइड फ्रीक्वेंसी का एम्पलीट्यूड 0.06 एंड सो ऑन.
एंड ये टेबल से एक इंपॉर्टेंट चीज आप नोट कर सकते हो कि फॉर लो वैल्यू ऑफ मॉड्यूलेशन इंडेक्स, मतलब 0. ये मॉड्यूलेशन इंडेक्स की मैं बात करूं, लो वैल्यू, लो लेवल ऑफ द मॉड्यूलेशन इंडेक्स, मतलब 0. जब मॉड्यूलेशन इंडेक्स 0 है और मॉड्यूलेशन इंडेक्स 0.25 है, लेट से 0.25 तक हम लेते हैं, तो उसको हम बोलेंगे लो वैल्यू ऑफ द मॉड्यूलेशन इंडेक्स. द ओनली साइड बैंड्स दैट हैव द सिग्निफिकेंट लेवल ऑफ द पावर विद इन देम आर पॉसिबली फर्स्ट एंड सेकंड साइड बैंड्स. तो अगर मैं लो लेवल अप टू 0.5 की बात करूं, चलो 0.5 तक लिख लेते हैं. तो 0 जब मॉड्यूलेशन इंडेक्स 0 से लेके 0.5 है, मतलब लो लेवल ऑफ मॉड्यूलेशन इंडेक्स है, उस टाइम पे आप देख सकते हो कि जो सिग्निफिकेंट एम्पलीट्यूड है, ओके, वो फर्स्ट साइड बैंड है, सेकंड साइड बैंड का ही सिग्निफिकेंट लेवल्स है और इनका एम्पलीट्यूड सिग्निफिकेंट है. बाकी के जो साइड बैंड है उसका तो कोई मतलब एम्पलीट्यूड है ही नहीं, दे आर ऑलमोस्ट जीरो. ओके, तो हम बोल सकते हैं कि एफएम में जो इनफाइनाइट नंबर ऑफ साइड बैंड्स है, उसमें से जो कैरियर के आसपास के जो थोड़े साइड बैंड्स है, विच आर वेरी नियरर टू कैरियर, दे हैव द सिग्निफिकेंट एम्पलीट्यूड्स. बाकी के जो साइड बैंड्स है वो है, लेकिन इसका एम्पलीट्यूड बहुत ही कम है. देखो आप, एम्पलीट्यूड बहुत ही कम है. तो फॉर लो लेवल ऑफ मॉड्यूलेशन इंडेक्स, मतलब मैं 0.5 तक की बात करूं, तो आप देख सकते हो कि कैरियर के आसपास का फर्स्ट साइड फ्रीक्वेंसी एंड मोस्टली सेकंड साइड फ्रीक्वेंसी है, उनका ही एम्पलीट्यूड सिग्निफिकेंट है, बाकी सबका किसी का एम्पलीट्यूड है ही नहीं. तो इसका मतलब ये हुआ कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ साइड बैंड्स है, लेकिन इनफाइनाइट नंबर ऑफ साइड बैंड्स में जो कैरियर के आसपास की जो फ्रीक्वेंसी है, दैट इज फर्स्ट एंड सेकंड साइड बैंड, दे हैव द सिग्निफिकेंट एम्पलीट्यूड्स. बाकी के जो साइड बैंड्स है उसका कोई रोल नहीं है, मतलब वो है, लेकिन उसका एम्पलीट्यूड इतना छोटा है दैट वी कैन इग्नोर प्रैक्टिकली. तो प्रैक्टिकली अगर हम बात करें, ओके, तो साइड बैंड्स है ना, बहुत सारे साइड बैंड्स है, देयर आर लार्ज नंबर ऑफ साइड बैंड्स इन एफएम, बट जो कैरियर के आसपास के, मतलब सेंट्रल फ्रीक्वेंसी, कैरियर फ्रीक्वेंसी के आसपास के जो साइड बैंड है, फर्स्ट एंड सेकंड, ओके, उनका ही एम्पलीट्यूड सिग्निफिकेंट है. बाकी के साइड बैंड फ्रीक्वेंसी का एम्पलीट्यूड हम इग्नोर कर सकते हैं. मतलब हमें कौन से साइड बैंड को मतलब पिक्चर में लेना है और उनको कंसीडर करना है कि जो साइड बैंड का एम्पलीट्यूड सिग्निफिकेंट है. और कौन से साइड बैंड का एम्पलीट्यूड सिग्निफिकेंट होता है, कैरियर सिग्नल की कैरियर फ्रीक्वेंसी आसपास के 1 और 2 साइड बैंड्स का एम्पलीट्यूड सिग्निफिकेंट होता है. बाकी सब फ्रीक्वेंसीज जो होती है, हायर ऑर्डर साइड बैंड्स है, उनका एम्पलीट्यूड सिग्निफिकेंट नहीं होता है, तो हम उनको प्रैक्टिकली इग्नोर कर सकते हैं. अब देखो, प्रैक्टिकल थियोरिटिकल इनफाइनाइट नंबर ऑफ साइड बैंड्स थे, लेकिन प्रैक्टिकली हम कंसीडर करें तो ओनली दो साइड बैंड्स विच हैव द सिग्निफिकेंट एम्पलीट्यूड, दे आर इंपॉर्टेंट. और वो कौन से है, सिर्फ कैरियर फ्रीक्वेंसी के आसपास के 2 और 3. ओके, क्लियर हो गया. तो हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करें, अगर फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम ऑफ एफएम जो मैंने अभी तक हमने डिस्कस किया, उसको थोड़ा सिस्टेमेटिक डिस्कस कर लेते हैं. सो बेसिकली एफएम वेव कंसिस्ट ऑफ 1 कैरियर, ओके, एंड फर्स्ट टर्म इन द इक्वेशन रिप्रेजेंट कैरियर. ओके, वो हमें पता है कि एफएम में कैरियर होता है. सेकंड पॉइंट, द एफएम वेव आइडियली कंसिस्ट ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ साइड बैंड्स. थियोरिटिकली हम बात करें तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ साइड बैंड्स है. ऑल द टर्म एक्सेप्ट द फर्स्ट वन आर साइड बैंड, मतलब पहला जो कंपोनेंट है वो कैरियर है, बाकी के सब साइड बैंड्स है. थर्ड पॉइंट, द एम्पलीट्यूड ऑफ द कैरियर एंड साइड बैंड्स इज डिपेंडेंट ऑन जे कोएफिशिएंट, मतलब बेसल्स कोएफिशिएंट, वो हमें पता है. फोर्थ पॉइंट, as the value of J coefficients depend on the modulation index beta, the modulation index determine how many side bands component have the significant amplitudes. Very important. मतलब बहुत सारे इनफाइनाइट नंबर ऑफ साइड बैंड्स है और साइड बैंड्स का एम्पलीट्यूड किस पे डिपेंड करता है, मॉड्यूलेशन इंडेक्स पे, बीटा पे. ओके, तो मॉड्यूलेशन इंडेक्स बेसिकली डिटरमाइन करता है कि कितने साइड बैंड कंपोनेंट के सिग्निफिकेंट एम्पलीट्यूड है, और जो साइड बैंड कंपोनेंट के सिग्निफिकेंट एम्पलीट्यूड है वो ही हमारे केस में मैटर करता है. बाकी जो कंपोनेंट का एम्पलीट्यूड बहुत ही छोटा है उसको हम इग्नोर कर सकते हैं. क्लियर. नाउ नेक्स्ट पॉइंट, सम ऑफ द जे कोएफिशिएंट कैन बी नेगेटिव, देयरफॉर देयर इज अ 180 डिग्री फेज शिफ्ट फॉर दैट पर्टिकुलर पेयर ऑफ साइड बैंड्स. मतलब कुछ साइड में जे कोएफिशिएंट का कुछ एम्पलीट्यूड नेगेटिव भी होगा, तो उस केस में साइड बैंड का एम्पलीट्यूड भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव. Clear? Very important. The carrier component does not remain constant. As
J0 beta is varying, the amplitude of the carrier is also varying. However, the amplitude of the FM wave remains constant. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखो बच्चों कि हमें पता है कि कैरियर का एम्पलीट्यूड फिक्स नहीं, कैरियर का एम्पलीट्यूड किस पे डिपेंड करता है, J0 बेसल फंक्शन J0 बीटा, बीटा लिखो या MF लिखो चलेगा, MF इज ऑल्सो मॉड्यूलेशन इंडेक्स इन दिस केस। तो कैरियर जो हमारा है उसका एम्पलीट्यूड J0 बीटा पे डिपेंड करता है। जैसे जैसे J0 बीटा वेरी करेगा मॉड्यूलेशन इंडेक्स के साथ, तो कैरियर का एम्पलीट्यूड भी वेरी होगा। ओके, एंड बेसिकली जितने भी साइड बैंड से हमारे सबके एम्पलीट्यूड बीटा पे डिपेंड करता है मॉड्यूलेशन। तो मॉड्यूलेशन इंडेक्स बीटा चेंज होगा तो सब कैरियर सिग्नल एज वेल एज साइड एंड का एम्पलीट्यूड भी वेरी होगा। मतलब ओवरऑल ऑन एन एवरेज हम देखने जाए तो एम्पलीट्यूड ऑफ द FM वेव विल रिमेन्स कांस्टेंट। कुछ मॉड्यूलेशन इंडेक्स की कुछ वैल्यू के लिए कुछ पर्टिकुलर साइड बैंड का एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा, बीटा की कुछ वैल्यू के लिए कुछ स्पेसिफिक साइड बैंड का एम्पलीट्यूड कम होगा। मतलब ऑन एन एवरेज हम देखने जाए तो एम्पलीट्यूड ऑफ द FM वेव रिमेन्स कांस्टेंट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट, फॉर सर्टेन वैल्यू ऑफ मॉड्यूलेशन इंडेक्स द कैरियर कंपोनेंट विल कंप्लीटली डिसअपियर एंड दिस वैल्यूज आर कॉल्ड आइगन वैल्यूज। तो हमने देखा था यहाँ पे देखो कि जब मॉड्यूलेशन इंडेक्स 2.41 होता है तब कैरियर का एम्पलीट्यूड 0 हो जाता है, मतलब कैरियर कंपोनेंट इज कंप्लीटली डिसअपियर, और इसको हम क्या बोलेंगे, आइगन वैल्यूज बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे, मतलब 2.41 दैट इज द आइगन वैल्यूज। ओके, एंड वेरी इंपॉर्टेंट द पावर ऑफ द FM, पावर ऑफ FM की बात करें सो इन FM द टोटल ट्रांसमिटेड पावर ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। व्हाई इट ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट, बिकॉज एम्पलीट्यूड ऑफ FM वेव रिमेन्स कांस्टेंट। अगर एम्पलीट्यूड रिमेन्स कांस्टेंट रहेगा तो पावर भी कांस्टेंट रहेगा, बिकॉज पावर इज अल्टीमेटली डिपेंड्स ऑन एम्पलीट्यूड। ओके, तो ये याद रखना है कि टोटल ट्रांसमिटेड पावर इन FM ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट, इट इज नॉट डिपेंड्स ऑन मॉड्यूलेशन इंडेक्स। अगर AM की बात करें तो वो कांस्टेंट नहीं था, पावर कांस्टेंट नहीं था, बिकॉज AM में क्या होता है, एम्पलीट्यूड चेंज होता है कंटिन्यूअसली, तो पावर भी कंटिन्यूअसली चेंज होता है इन केस ऑफ AM। बट इन केस ऑफ FM the amplitude of the FM wave remains constant, so power also remains constant. Okay, clear है? So EC always remains constant, वो इसका रीजन है। Then transmitted power is given as PT is equal to EC square divided by 2R, where EC is the peak amplitude of the FM wave, okay, or carrier wave, peak amplitude of the carrier wave, very important. So total power in FM is given by this equation, EC square divided by 2R. So expression for total power in FM is PT is equal to EC square divided by 2R, where EC is nothing but peak amplitude of the carrier signal. तो ये आपको याद रखना है। So these are the some important points for frequency spectrum of FM. Clear? Okay? तो बच्चों हमने क्या क्या डिस्कशन किया अब तक? हमने ये डिस्कशन किया कि जो FM वेव होता है इसमें थियोरिटिकली इनफाइनाइट नंबर ऑफ साइड बैंड्स होते हैं, और वो साइड बैंड्स का एम्पलीट्यूड किस पे डिपेंड करता है बेटा, वो डिपेंड्स करता है मॉड्यूलेशन इंडेक्स बीटा पे। तो मतलब जैसे जैसे मॉड्यूलेशन इंडेक्स बीटा चेंज होगा साइड बैंड्स के एम्पलीट्यूड भी चेंज होंगे, कैरियर का भी एम्पलीट्यूड चेंज होगा कंटिन्यूअसली बीटा के साथ। और हमने इंपॉर्टेंट चीज ऐसी नोटिस की, वो टेबल से, जो ये टेबल है वो टेबल एंड ये वेवफॉर्म से हमने एक इंपॉर्टेंट चीज नोटिस की कि भले FM में इनफाइनाइट नंबर ऑफ साइड बैंड्स से है, लेकिन सारे साइड बैंड्स का एम्पलीट्यूड सिग्निफिकेंट नहीं है। जो कैरियर के आसपास, मतलब फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम में कैरियर जो है सेंटर ऑफ फ्रीक्वेंसी, इसके आसपास के 1 और 2 साइड बैंड्स है, उनका ही एम्पलीट्यूड सिग्निफिकेंट है और वही मोस्ट ऑफ द पावर कैरी करते हैं। बाकी के जो साइड बैंड्स है उनका एम्पलीट्यूड निग्लिजिबल होता है, जिसको हम इग्नोर कर सकते हैं इन केस ऑफ FM। ओके, तो प्रैक्टिकली हम बात करें तो FM में भी कुछ मतलब कुछ फ्यू साइड बैंड्स आर देयर, दे हैव द सिग्निफिकेंट एम्पलीट्यूड एंड दे आर इंपॉर्टेंट फॉर आवर कंसिडरेशन। बाकी के साइड बैंड्स बहुत सारे हैं लेकिन उनका एम्पलीट्यूड बहुत ही छोटा होता है, तो उसको हम इग्नोर कर सकते हैं। तो अगर मैं इनफाइनाइट मतलब थियोरेटिकली बात करूं तो थियोरेटिकली FM की बैंडविड्थ इनफाइनाइट होती है, लेकिन हम प्रैक्टिकली बात करें तो वो इनफाइनाइट बैंडविड्थ नहीं होगी, क्योंकि हमें ऐसे ही साइड बैंड्स कंसीडर करने हैं जिसका एम्पलीट्यूड सिग्निफिकेंट है। तो प्रैक्टिकली
एफएम वेव की बैंडविड्थ डिफाइन करने के लिए हमें एक रूल डिस्कस करना पड़ेगा जिसका नाम है कार्जन रूल। ओके, तो कार्जन रूल इज यूज फॉर डिटरमाइनिंग द बैंडविड्थ ऑफ द फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड वेव प्रैक्टिकली। तो थियोरिटिकल तो इनफाइनाइट बैंडविड्थ है, लेकिन प्रैक्टिकली हमें एफएम वेव की बैंडविड्थ डिटरमाइन करनी है तो हमें कार्जन रूल डिफाइन करना पड़ेगा और उसका हमें डिस्कशन करना पड़ेगा। तो कार्जन रूल क्या है तो मैं आपको डिस्कस करता हूं। तो वेरी यूजफुल रूल ऑफ थंब दैट इज यूज्ड बाय मेनी इंजीनियर्स टू डिटरमाइन द बैंडविड्थ ऑफ एफएम सिग्नल फॉर रेडियो ब्रॉडकास्ट एंड रेडियो कम्युनिकेशन सिस्टम इज बेसिकली नोन एज अ कार्जन रूल। तो कार्जन रूल हेल्प अस टू डिटरमाइन द बैंडविड्थ ऑफ एफएम वेव। और ये रूल क्या कहता है वो समझ लो। द रूल स्टेट दैट द 98% ऑफ द सिग्नल पावर contained within a bandwidth equal to the deviation frequency plus modulation frequency doubled। ओके, मतलब ये हुआ कि एफएम का जो टोटल पावर है वो मोस्ट ऑफ द पावर इज कंटेंट इन द स्मॉलर अमाउंट ऑफ बैंडविड्थ। ओके, वो कितनी है? विदिन अ बैंडविड्थ इक्वल टू द डेविएशन फ्रीक्वेंसी प्लस मॉड्यूलेशन फ्रीक्वेंसी तो हम कार्जन रूल को ऐसे डिस्कस कर सकते हैं कि बैंडविड्थ इज इक्वल टू ट्वाइस डेल्टा एफ प्लस एफ एम। वेरी इंपॉर्टेंट, ट्वाइस डेल्टा एफ प्लस एफ एम। सो दिस इज द कार्जन रूल। This is the Carson rule for determining the practical bandwidth of the FM wave, where delta f is the frequency deviation, FM is the modulating signal frequency। तो हमें frequency deviation पता है FM में और maximum modulating signal frequency पता है, तो हम वो FM की bandwidth easily determine कर सकते हैं using Carson rule। तो Carson rule क्या हो गया आपका, उसका expression क्या मिल गया? So Carson rule is used to determine the bandwidth of FM, and according to Carson rule the bandwidth is given as ट्वाइस डेल्टा एफ प्लस एफ एम। अगर मैं इसको थोड़ा रीअरेंज करूं, अगर मैं एफ एम को कॉमन ले लूं तो क्या हो जाएगा बेटा? एफ एम को कॉमन ले लूं तो क्या हो जाएगा? बैंडविड्थ इज इक्वल टू, एफ एम को कॉमन ले लेता हूं ट्वाइस एफ एम, इससे एफ एम को कॉमन लेता हूं तो एफ एम बाहर निकल गया, अंदर क्या बचेगा? डेल्टा एफ डिवाइडेड बाय एफ एम प्लस वन। क्लियर है? वेरी इंपॉर्टेंट। तो एफ एम को मैंने कॉमन ले लिया तो ये बाहर आ गया है, इट इज डिवाइडेड बाय एफ एम एंड हियर इट इज 1। तो ट्वाइस एफ एम डेल्टा एफ बाय एफ एम प्लस 1 एंड डेल्टा एफ बाय एफ एम क्या है? बीटा। तो इसको ये क्या हो जाएगा? 2 बीटा डेल्टा एफ प्लस एफ एम की जगह पे मॉड्यूलेशन इंडेक्स बीटा प्लस 1 इंटू एफ एम। सो दिस इज द अनदर एक्सप्रेशन फॉर द कार्जन रूल फॉर डिटरमाइनिंग द बैंडविड्थ। तो हमें दो एक्सप्रेशन मिले फॉर कार्जन रूल for determining the bandwidth of FM। One rule is bandwidth is equal to twice delta F plus FM. Second is bandwidth is equal to 2 beta plus 1 into FM। क्लियर हो गया? ओके, तो आज के लेक्चर में हमने क्या डिस्कस किया? वी हैव डिस्कस अबाउट द फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम ऑफ FM, करेक्ट? एंड इन दैट थिंग द मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आर कि थियोरेटिकली हम बात करें तो FM स्पेक्ट्रम कंसिस्ट ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ साइड बैंड्स। So in order to transmit that infinite number of sidebands, theoretically we need infinite bandwidth। लेकिन हमने जो एनालिसिस किया फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम्स का, उससे हमें ये चीज मालूम पड़ी कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ साइडबैंड, बहुत सारे साइडबैंड्स है, लेकिन उसमें से फ्यू साइडबैंड्स विच आर नियरर टू कैरियर फ्रीक्वेंसीज हैव सिग्निफिकेंट एम्पलीट्यूड। बाकी के जो साइडबैंड है उनके एम्पलीट्यूड बहुत ही छोटे होते हैं, इसलिए हम उसको इग्नोर कर सकते हैं। तो प्रैक्टिकली अगर हमें बात करें तो उसके प्रैक्टिकली कैरियर फ्रीक्वेंसीज के आसपास की फर्स्ट और सेकंड साइड फ्रीक्वेंसीज है, उसका ही एम्पलीट्यूड सिग्निफिकेंट होता है और उसको ही हम कंसीडर करेंगे प्रैक्टिकली। बाकी की जो फ्रीक्वेंसी होती है, बाकी जो साइड बैंड्स है, उसका एम्पलीट्यूड बहुत ही छोटा है, तो जिसको हम इग्नोर कर सकते हैं। तो अगर हम प्रैक्टिकल बैंडविड्थ की बात करें तो हमें ऐसे साइड बैंड्स का ट्रांसमिट करना है जिसका एम्पलीट्यूड सिग्निफिकेंट है। तो प्रैक्टिकली एफएम की बैंडविड्थ डिसाइड करने के लिए हमने कार्जन रूल को डिफाइन किया, एंड अकॉर्डिंग टू कार्जन रूल द बैंडविड्थ इज गिवन एज बैंडविड्थ इज इक्वल टू ट्वाइस इनसाइड ब्रैकेट डेल्टा एफ प्लस एफ एम और बैंडविड्थ इज इक्वल टू ट्वाइस बीटा प्लस 1 इंटू एफ एम। हम दोनों में से कोई भी एक्सप्रेशन को यूज कर सकते हैं फॉर एक्सप्रेसिंग द बैंडविड्थ ऑफ एफ एम। ओके, सो आई होप कि आज हमने जो भी डिस्कशन किया आपको समझ में आ गया होगा। लेट्स स्टॉप हियर।
We'll discuss other aspect of this FM in our next video lecture. Thank you very much.